Hi student, this is Saraswati Academy. We are going to learn political science, lesson number 3, political parties. So in last lecture we learned about that political parties means election procedure. Okay, how the election commissioner is responsible for all the election procedure and how he conducted elections. Okay, so in this lesson we are going to learn about the political parties and which work they are doing. Okay, so in the school and the surroundings you must have seen some groups, institutions and organizations working to achieve some objective. Some organizations like initiative to resolving social problems. You may have read about various movements and their work. Just as there are active groups, institutions and movements, similarly there are political parties who conduct elections. Means, as you know that in our surrounding we have seen different social organizations. The same thing also following the political parties. They have some objectives and for the election purpose they keep their whatever objectives are in the front of common people, and then common people will decide which representative we'll have to choose, okay, or which party we will have to give vote. So first point is to be in power. So achieving power through election is the main objective of the political party. So thus different political parties compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but competition should be fair. So obviously every political party's objective is there कि उनको क्या करना है, political parties को election जीतना है. ओके, एंड कंपटीशन ऑल्सो इज़ देयर. सो पॉक देयर इज़ यानी कि ऐसा कुछ है नहीं कि अगर कंपटीशन है तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो रहेंगी. तो एक पार्टी को जीतने के लिए अगर दूसरी पार्टी को मारपीट करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट फेयर. सो दैट्स व्हाई द कंपटीशन शुड बी फेयर. Then another thing is that to pursue an ideology. So to pursue an ideology means what कि उनके एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसको समाज के सामने या लोगों के सामने रख कर अपना जो पार्टी से उनका मोटो क्या है, अपना एम क्या है वो बता सके. ठीक है. सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज. Means political parties have a particular stand about social issues. These together make party ideology. The people who consider any specific party ideology as the acceptable support that a political party, and the support received by the political party is called the mass base of the political parties. Means for example समझो अगर कोई पार्टी है, ठीक है, अभी अपने इन आवर इंडिया देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज और वेरियस पार्टीज. ठीक है. सो इन दैट पार्टीज सम पार्टीज ऑब्जेक्टिव्स आर देयर कि उन्होंने क्या किया है, किसानों को सामने रखा है और किसानों की जो ज़रूरत है कि हम पार्टी में जीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमको किसानों को सबसे पहले तो उनके हक दिलाना है, उनके लिए उनकी जो सुसाइड है उनको कम करना है. अगर वो उन्होंने एक आइडियोलॉजी रखी कि हमको किसानों के लिए कुछ करना है, ठीक है, ये उनकी आइडियोलॉजी हो गई. ठीक है. उसके बाद ये आइडियोलॉजी को लेकर फिर उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि यानी कि समझो हाँ जो किसान वर्ग है, एज यू नो दैट आवर इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री. सो ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री. सो जो फार्मर है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उस पार्टी के लिए. तो उन पार्टी के लीडर को मालूम है कि हमको इन फार्मरों का सपोर्ट मिलेगा, एंड अदर विच एवर द बिलो पावर्टी लेवल जो वर्कर है वो भी उनका भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली विच एवर द वेरी लेस इनकम ग्रुप इज देयर इन आवर सोसाइटी, दिस ऑल्सो विल सपोर्ट दिस ग्रुप. देन द पार्टी next objective is next point is there to have a party agenda. Political party prepare their party's agenda on the basis of party ideology. ओके. तो पार्टी की एक आइडियोलॉजी को लेकर एक एजेंडा तैयार करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जैसे कि फार्मर को
आगे रख के एक उनके लिए वो ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि आफ्टर व्हेन वी विन द इलेक्शन देन विच थिंग वी विल फॉलो और विच थिंग विल अप्लाई इन द सोसाइटी। तो सबसे पहले किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करेंगे। देन वॉट एवर सम अनदर प्रोविजंस शुड बी देयर फॉर द फार्मर एंड अनदर थिंग इज देयर and another whichever class is there which below the poverty line, so some provisions should be there for them also, like 2 रुपये किलो अनाज मिलेगा या इस तरह से प्रोविजन करके रखते हैं या इस तरह से एजेंडा रखते हैं। ठीक है। देन टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, तो टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको अपनी सत्ता लानी है। ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इन द इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पार्टी विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एज अ अपोजिशन पार्टी। तो आपको मालूम है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो क्या होती है, मेजोरिटी पार्टी बन जाती है एंड दिस पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट। ओके। एंड विच एवर द अनदर पार्टी इज देयर they can play the role of opposition party. So as you know that whichever ruling party is there, so this party is doing their work or not properly, so the opposition party is looking after all these matters. तो opposition party देखती है कि ये जो ruling party है वो अपना काम बराबर कर रही है कि नहीं, और फिर उनको अपोज करती है अगर if they are not doing their work properly. Next point is there to act as a link between the government and the people. तो उनका जो नेक्स्ट एक्ट क्या रहेगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो सत्ता में आई है तो वो जो है वो अपना काम बराबर कर रही है कि नहीं, दिस इज़ द मेन थिंग। देन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड एंड द कंप्लेंट ऑफ द पीपल to be the government. The government tries to get support of the people for its policies and the program. ठीक है। सो थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका क्या काम रहेगा, जो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट उनको वो अगर सत्ता में आई है तो उनका जो काम है कि जो डिमांड्स लोगों ने उनके लिए सामने रखी है एंड विच उन्होंने जो लोगों को वादा किया था कि हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल करेंगे। तो सबसे पहले उनको जो उन्होंने डिमांड लोगों के सामने रखी थी, अपने जो विचार है उनको फुलफ़िल करना है। गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर द इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो अपने इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कैसे चेंज होता है, सबसे पहला पॉइंट जो है, द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। द कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इंडियन पॉलिटिक्स was controlled by the Congress party. So this era was described as the era of the single dominant party system. यानी कि आपको जैसे मालूम है कि राजेशाही कैसे होती है, तो उस राजेशाही में क्या होता है कि किंग रहता है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। ठीक है। उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, बेटे का बेटा राजा बनता है। तो सेम थिंग हैपन इन द आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, विच एवर पार्टी ओन द इलेक्शन एट दैट टाइम, देन दिस पार्टी कंटिन्यूड इलेक्टेड वन बाय वन ईयर्स। ओके। सो अगर एक पार्टी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अगर मेजोरिटी में रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, दिस ईरा वॉज डिस्क्राइब। यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत साल तक सत्ता में थी और इसीलिए उस पार्टी को क्या कहा गया है, दिस ईरा वॉज डिस्क्राइब एज द ईरा ऑफ द सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। तो एक ही पार्टी की ये सिस्टम जो है वो समाज में चलता था उस टाइम। तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर उसको चेंज करने के लिए एक फिर अनदर पार्टीज ऑल्सो फॉर्म। सो सेकेंड पॉइंट इज देयर, द नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977। तो उस पार्टी को चैलेंज करने के लिए दूसरे पार्टी भी फॉर्म हुए इन 1977। आफ्टर द
1989 Lok Sabha elections, the system of the one party emerging on the dominant party came to an end, and since then different parties began to came together to form colonial government. अभी colonial government means what? कि जो समझो पॉलिटिकल एक जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको अगर एक पार्टी को जिताना पड़ता है, राइट। अगर वो उसको जितने चाहिए उतने वोट अगर नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली अनदर पार्टी कम टुगेदर कम फॉरवर्ड एंड विल सपोर्ट द पार्टी। सो दिस इज कॉल्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट। दो पार्टीज आके गवर्नमेंट बनाती है, उसको कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट of the establishing colonial government. The belief that the colonial government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the colonial government system was stabilized in India. Okay, so at that time means some rule, as you know, do you know that about the if the power remain with the one political party, अगर एक ही political party अगर long period के लिए रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? one party system. Then in the politics, when the two political parties are influential and if the political parties enjoy power alternatively, यानी कि अगर दो political party और एक वन बाय वन पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय कर रही है या उनका जो पावर एंजॉय कर रही है तो उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? टू पार्टी सिस्टम. Then when many political parties compete for the political power and more or less they are equally influential, the party system is called मल्टी पार्टी सिस्टम. यानी कि दो से ज़्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टी है और वन बाय वन दे आर एंजॉइंग द पॉलिटिकल पावर सो एंड इन्फ्लुएंस ऑल्सो, सो दैट टाइम दिस इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम. गेटिंग? ये समझ में आया आपको? मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है. देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्टीज. ओके, सो नेशनल पार्टीज में क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमको पढ़ना है इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब एस्टेब्लिश हुए? इन 1985 इट वाज एस्टेब्लिश. And at the time of the establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for the national independence. Groups with the different ideologies had come together in this nationalist movement. After the independence, the Congress emerged as the most dominant political party. And as you know that before the independence, Indian National Congress was there, and it was the major party in India. And obviously, after the independence of India, this came forward and established their government. And the party from the beginnings follow the policy of the secularism. इस पार्टी ने क्या ये फॉलो किया है? उनका एजेंडा क्या फॉलो किया? सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स क्या? कि किसी भी एक धर्म को आगे नहीं करना है, सभी धर्म समभाव रहेंगे. सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड इक्वल राइट्स एंड द वेलफेयर फॉर द माइनॉरिटीज़. यानी कि सभी पूरे इसमें डेवलपमेंट करेंगे, जो भी फील्ड है उसमें डेवलपमेंट करेंगे, सबको इक्वल राइट्स और वेलफेयर मिलेगा. जो भी माइनॉरिटीज़ है, खास करके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो यानी कि जो कम जाति वाले या धर्म वाले जो लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनको भी उनको सेम राइट्स एंड इक्वल वेलफेयर मिलेगा. एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच एवर इज देयर दे विल get also more benefit for them. Okay, so accordingly the Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believe in the democratic socialism, some equality and the international peace. Okay, so these were the objective of the Indian National Congress. And another is there the Communist Party of India. Okay, so Communist Party, as you know that in previous lesson we also learn about that कि Communist Party क्या है, यानी कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है. सो Communist Party was established in 1925
एंड दिस पार्टीज ऑब्जेक्टिव वॉज, इट वॉज द एक्चुअली ओल्ड पार्टी, एंड उनका एम क्या था, दिस पार्टी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर एंड द वर्कर, यानी कि लेबर और वर्कर के लिए लड़ने वाली पार्टी। जैसे कि आपने देखा है कि वो जो उनका सिंबल है उसमें ही आपको समझ में आता है कि किसानों के लिए है। द पार्टी अपोजेस capitalism. The party leadership developed confidence differences in the 1960s over the issue of the whether Communist Party of India should accept the leadership of the Communist China or the Soviet Union. This led to the split of the Communist Party of India and separate party. Communist Party of India means Marxist was formed in 1964, यानी कि फिर वो जो है वो मार्क्सिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे it was affected by this party, and after that this there was another party, this is named as the this is called the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मीन्स मार्क्सिस्ट, यानी कि मार्क्सवाद को याद में रखे और ये पार्टी फॉर्म की गई है देन 1964 में। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू। थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर।